Assalamualaikum students, welcome to online classes of Air Foundation Tibu Campus. I'm your English teacher. This is our English book, New Oxford Modern English Book 5, 3rd edition. Today we will study our first chapter, which is The World in a Wall. This story is the autobiography of the author Druel. In this chapter we will study different difficult meaning. You can see in this picture. Okay, now let's start the brief summary of the story. This is the autobiography of Gerald Durrell. It means that he wrote his own story. In this story, there was a huge wall in the house. The wall contains several inches wide cracks, and in that wall, some inhabitants lived. So some of them are hunters, and some of them are hunted, and they also divided into night and day workers. And Gerald loved the creature because he loved to explore the animal world, because he always wants to see them and their activity and see them grown up. So the most favorite creature in that wall was female scorpion, and it also has many kids. So he decided to take the scorpion with him and bring her to his home. So he took the female scorpion and her kids in the matchbox and brought them to his home. He wanted to see them grown up. He put the matchbox on the table and went for lunch. And after the lunch, his elder brother Larry, who always used to smoke, so he used the matchbox. When he opened the matchbox, all the creatures came down, and they were creeping on the table. Larry and other family members want to kill them, and all because they were very afraid, because this is the very first time they saw these dangerous creatures in their home. Gerard was trying to protect the scorpion because he loved the animal creature, and at the end, the conclusion of the story is that he rounded up the babies and mother and released them back to the गार्डन वॉल, बिकॉज उनकी फैमिली में उनको इतनी परमिशन नहीं दी कि वो उन चीज़ों को घर पे रखे, एंड जो उसकी फैमिली में जो सिचुएशन क्रिएट हो गई तो उसके बाद उसका कंक्लूजन यही था कि उसने वो सब कुछ वापस रख दिया था. एंड एट द एंड his mother advised him to get more education because she wanted to stop him exploring the animal world. So let's start the explanation of the chapter. This extract is from the autobiography My Family and Other Animal by Gerald Durrell. Durrell was an expert in studying animal. When he was 10-year-old, Durrell and his elder sibling and his mother moved to Corfu in Greece to live with Durrell's grown-up brother Larry. It was here that Durrell began to collect and keep animals as pets. अब ये ऑटोबायोग्राफी है ड्रूएल की. वो अपनी और फैमिली के साथ जो है अपने बड़े भाई के घर शिफ्ट हो गया था, जो कि ग्रीस में रहता था, और वहीं पे उसने अपने पास एनिमल्स को एज अ पेट रखना स्टार्ट किया था. अब वो अपने घर की सिचुएशन बता रहा है, उस दीवार की सिचुएशन बता रहा है कि उसके घर में जो एक पुरानी दीवार थी उसके बारे में बता रहा है. द क्रम्बलिंग वॉल दैट सराउंड द गार्डन अलोंग साइड द हाउस वॉज अ रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी. इट वॉज एन एंशियंट ब्रिक वॉल दैट हैड बीन प्लास्टर्ड ओवर, बट नाउ This outer skin was green with moss bulging and sagging with the damp of many winters. The whole surface was an intricate map of cracks, some several inches wide, other as fine as hair. Here and there large pieces had dropped off and revealed the rows of rose-pink bricks lying beneath. अब वो कहता है कि उसकी वॉल की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ गए थे. वो इतनी पुरानी वॉल थी कि उसमें इतने ज़्यादा क्रैक्स थे कि कुछ जो थे बिल्कुल बालों की तरह पतले थे और कुछ जो थे वो सेवरल इंचेस के क्रैक्स थे. और वो कहता है कि उसमें जो चीज़ें थी जैसे पत्थर वगैरह उसके नीचे गिरे हुए थे, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे लाइक रोज़ पिंक कलर का उसके ऊपर मतलब वो मॉस वगैरह जमा हो गया था, और वो मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी उस दीवार की. The inhabitants of the wall were a mixed a lot, and they were divided into day and night workers. The hunters and the hunted at night. The toads and ghaws were the hunters. The prey was the population of stupid, absent-minded cranflies, moths of all shape and size, and rotten beetles hurrying with their night worker. अब वो कहता है कि उस वॉल में जितने जो इनहेबिटेंट थे वो
मिक्सअप रहते थे, और कुछ जो थे डेज वर्कर में डिवाइड हुए थे, कुछ नाइट वर्कर में। अब उसमें कहता है जो टोड्स और गिकॉक्स थे, अब टोड्स जो होते इस टाइप ऑफ फ्रॉग एंड गिकॉक्स अ टाइप ऑफ लिजर्ड, और वो जो थे वो ऐसी पॉपुलेशन जैसे हम लोग देखते हैं जो फ्रॉग वगैरह होते हैं और जो लिजर्ड्स वगैरह होती हैं वो उनको अपना शिकार करते हैं, जैसे मॉस्किटो टाइप, और जो हमारे पास छोटे छोटे फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं उनको अपना शिकार बनाते हैं। बाय डे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल बिटवीन द प्रे एंड प्रीडेटर। अब डे टाइम में ये बहुत मुश्किल होता था हमारे पास कि हम लोग बताएं कि इसमें शिकार कौन है और शिकारी करने वाला कौन है, शिकारी कौन है। Everything seemed to fed off everything else. The hunting wasp searching out caterpillars and spider. The spider hunts for flies. The dragonflies fed off the spiders and the flies, and the swift multicolored wall lizard fed off everything. अब वो कह रहे हैं कि जैसे वो हमें बता रहे हैं कि जिसमें जो कैटरपिलर और जो थे वो स्पाइडर उनको फ्लाइज को हंट करता था, और ड्रैगन फ्लाइज थी वो स्पाइडर को फड अप करती थी, और उसके बाद वो कहते हैं कि जो मल्टी कलर लेजर थी वो सब कुछ खा जाती थी, जो छोटे छोटे हमारे इंसेक्ट होते हैं वॉल पे। But my favorite were the shyest member of the wall community who did not seek any attention. They were also the most dangerous. You hardly ever saw one useless. You look for it, and yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall. If you gently lifted a piece of the loose plaster away from the brick, their crouching beneath it would be like black scorpion, an inch long, looking as though he was made out of polished chocolate. और कहता है कि उसमें जो उसकी जो फेवरेट उस पूरी कम्युनिटी में, इनहेबिटेंट की पूरी कम्युनिटी में उसकी जो फेवरेट थी वो एक शाइस्ट मेंबर था, जो बहुत मतलब कह सकते हैं कि शर्मीला टाइप का था, लेकिन वो बहुत डेंजरस भी था, और वो थी एक फीमेल स्कॉर्पियन। और उसके बाद वो कहता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हंड्रेड्स ऑफ इनहेबिटेंट जो थे उस वॉल में रहते थे। और वो कहता है अगर हम लोग गलती से कोई भी वॉल का छोटा सा प्लास्टर उठा के भी देखते हैं तो उसके नीचे वो क्राउचिंग कर रहे होते थे। There were weird-look things with their flattened oval body, their knees crook-like, the enormous crab-like claws, bulbous and neatly joined as armor, and the tail like a string of brown beads ending in a string like a rose thorn. The scorpion would lie there quite quietly as you examine him, only raise his tail as a warning sign if you breathe too hard on him. अब वो कह रहा है कि वहाँ पे उसकी जो बॉडी थी वो ओवल शेप की थी, और वो बहुत ही नीट, उसकी टांग बहुत नीट थी, और उसकी वो बहुत नीटली जॉइन हुई थी उसकी टांगें, जो ऐसे जैसे आर्मर हमारे होते हैं उनकी तरह। और उसके बाद वो कहता है कि वो अपनी जो टेल थी उस टाइम वो बहुत क्वाइटली एग्जामिन कर रही होती थी, और जैसे ही आप लोग उसके पास जाकर थोड़ा सा ऊंचा सा सांस भी लेंगे ना तो वो एकदम से अपनी टेल हाई कर देती है। कोई भी मतलब इस तरह की सेंस आती है जब उसको कोई खतरे की या किसी इस तरह की कोई सेंस आती है कि जैसे उसके ऊपर कोई खतरा आया हुआ है। Then one day I found a fat female scorpion in the wall, wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat. Closer inspection proved that these strange garments were made up of mass of teeny babies clinging on the mother's back. I was enraptured by this family, and I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up. With infinite care, I moved the mother and family into a matchbox and then hurried to the villa. अब वो कहता है कि मुझे वो फीमेल स्कॉर्पियन इतनी अच्छी लगी थी कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे उसके ऊपर जो है एक फ़र कोट सा लगा हुआ है, जैसे हम लोग हमारे पास जो फ़र कोट वगैरह होते हैं इस तरह के, जो उसके ऊपर जो से होते हैं वूल बहुत ही लाइट सी और बहुत ही सॉफ्ट सी वूल होती है इस टाइप की। लेकिन जब मैंने उसको क्लोजली एग्जामिन किया तो मुझे तब पता चला कि वो कोई वूल नहीं थी, उसके ऊपर कोई फ़र कोट नहीं था, वो थे उसके छोटे छोटे किड्स थे जो उसकी बैक पे बैठे हुए थे। उसके बाद वो कहता है कि मेरा बहुत ज़्यादा मूड था कि इसको मैं अपने घर ले जाऊँ और इसको मैं अपने बेडरूम में रखूँ और देखूँ कि ये ग्रोन अप कैसे होते हैं। उसके बाद ये फीमेल स्कॉर्पियन को और उसके किड्स को एक मैच बॉक्स में डालता है और अपने घर ले आता है। It was rather unfortunate that just I entered the room, lunch should be served. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room and made my way to the dining room and joining the family for the meal. अब वो कहता है कि जैसे मैं घर में इंटर हुआ तो ये मेरे लिए एक अनफॉर्चुनेट मतलब मेरी बदकिस्मती थी कि खाना टेबल पे सर्व हो रहा था। अब उसकी बदकिस्मती कैसे थी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन एज अ मुस्लिम ये एक गुड मैनर्स में आता है कि हम लोगों के जब घर में खाना सर्व हो रहा हो तो हम अपने बाकी सारे काम छोड़ के पहले खाना खाने चले जाएं, क्योंकि एज अ मुस्लिम
हमें खाने को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। तो उसने भी कुछ ऐसा ही किया, उसने उसको मेंटल पीस पे रखा मैच बॉक्स को जिसके अंदर स्कॉर्पियन थी, और वो चला गया खाना खाने के लिए। Dining over my food, feeding Roger superstitiously under the table and listening to the family arguing, I completely forgot about my exciting new creature at last. उस पर वो कहता है कि मैं आस्ता आस्ता खाना खा रहा था और उनके जो डॉग था रॉजर, वो टेबल के नीचे हमारी फैमिली आर्गुइंग सुन रहा था, और उसके बाद हम कहता है कि मैं ही टोटली फॉरगॉट अबाउट द क्रिएचर। वो अपनी क्रिएचर के बारे में बिल्कुल भूल जाता है कि उसने कोई क्रिएचर भी लाई हुई थी। एट लास्ट लैरी हैव फिनिश्ड फैच द सिगरेट फ्रॉम द drawing room, and lying back on his chair, he put one in his mouth and picked up the matchbox he had bought. Obviously, that at the end of my happy days was about to come. I watched my eldest brother interestingly as still talking loudly. He opened the matchbox. अब उसका जो एल्डर ब्रदर था लैरी, जिसके घर में वो रहने गए हुए थे, अब वो खाना खाने के बाद स्मोकिंग के लिए जाता है। वो मैच बॉक्स को उठा लेता है जो कि वो ऑथर लेकर आया था, जिसके अंदर फीमेल स्कॉर्पियन थी। अब जैसे ही वो उसको अंदर लेकर मैच बॉक्स को लेता है, वो चेयर पे बैठ के एक सिगरेट को अपने मुंह में डालता है, और उसके बाद मैच बॉक्स को वो उसी तरह ऊंची ऊंची बातें वगैरह भी साथ साथ कर रहा होता है, और साथ सिगरेट स्मोकिंग के लिए भी तैयार हो रहा होता है। और वो कहता है कि वो जो जब दिन था, वो जो टाइम था, वो मेरी हैप्पी डेज का एंड डेज था। नाउ आई इंसिस्ट टू दिस डे दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मीन नो हार्म. She was nervous and a little annoyed at being shut up in the matchbox for so long, and so she seized the first opportunity to escape. She pulled herself out of the box with great rapidity, her baby clinging on desperately and scuttled on the back of the lady's hand. अब वो कहता है कि मैं ये समझा रहा था कि जो फीमेल स्कॉर्पियन होती है वो हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, और वो बहुत नर्वस होती हैं जब मैंने उनको मैच बॉक्स में बंद किया, और जैसे वो मैच बॉक्स ओपन हुई तो वो बहुत तंग आई हुई थी, और उसने अपने आप को पुश किया मैच बॉक्स से बाहर निकालने में। और जैसे ही मैच बॉक्स से वो बाहर निकले तो उसके जो बेबीज और वो जो थे उसकी बाजू पे, उसके लैरी के उल्टे हैंड पे चलना शुरू हो गए थे। There is no quite certain what to do next. She paused, her sitting curved up at the ready. Larry, feeling the movement of her claws, glanced down to see what it was, and from that moment things got increasingly confused. अब इस स्टोरी में रियल ट्विस्ट स्टार्ट होता है कि वो कहता है कि जैसे लैरी हैंड में वो चलना शुरू हो गई थी, लैरी को कुछ फीलिंग्स हुई मोमेंट की, तो उसने जब हाथ नीचे करके देखा तो वो फीमेल स्कॉर्पियन थी, और उस टाइम उसके बाद हमारे जो घर में जो हमारी कन्फ्यूजन थी वो बढ़ती जा रही थी। अब उसके बाद लैरी ने क्या किया? ही अटर अ रोर ऑफ फ्राइड दैट ब्रॉट रॉजर आउट फ्रॉम द beneath the table and barked wildly. With a flick of his hand, he sent the unfortunate Scorpio land down to the table, and she landed midway between Margot and Leslie, scattering baby like uh, confetti as she thumped on the cloth. अब लैरी ने एकदम से अपने हाथ को फ्लिक किया, और वो जो पहले उसने बहुत ज़ोरदार से चीख मारी, उसके बाद फिर उसने फ्लिप किया तो वो जो जितने भी थे स्कॉर्पियन और उसके जो किड्स थे वो टेबल पे गिरे। अब जो स्कॉर्पियन थी वो जाके लैरी और सॉरी लेजली और उसके बाद मॉर्गो के दरमियान, टेबल के जो दरमियान में जगह, वहाँ पे जाके गिरी, और उसके जो बेबीज थे वो ऐसे फैल गए थे पूरे टेबल में, जैसे हम लोग के कलर पेजेस को ऐसे फेंकते हैं तो वो फैल जाते हैं। And with that, there was a rapid change from peace to chaos. Thoroughly enraged at this treatment, the creature stepped toward Leslie, her string quivering with emotion. Leslie leaped to his feet, overturning his chair, and flicked out desperately with his napkin, sending the scorpion rolling across the floor toward Margot. She promptly let out a scream that any railway engine would have been proud to produce. अब उस टाइम पे उनके घर का जो अमन था, जो पीस था, वो क्योस में चेंज हो गया था, मतलब फुल डिस्टर्बेंस शोर में चेंज हो गया था। और वो कहता है कि कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि लेजली ने मतलब इमोशंस में आके उसने नैपकिन को उठा के फेंका, तो वो जाके मार्गो के पास लगी, और उसके बाद मार्गो जो थी उसने एक ज़ोरदार चीख मारी, और वो चीख ऐसे थी जैसे एक रेलवे इंजन बहुत प्राउड फील करता है अपनी आवाज़ निकालने में। लुक आउट दे आर कमिंग, स्क्रीम मार्गो। मार्गो चीखना शुरू हो गई, वो आ रहे हैं। ऑल वो नीड इज़ अ बुक, रोड लेजली, डोंट पैनिक, हिट देम विद अ बुक। उसके बाद लेजली बोलती है कि पैनिक मत हो, बुक लो और इनको बुक के साथ हिट करो।
Mother completely bewildered by this sudden and rapid change from peace to chaos, but put on her glasses and peered down the table to see what was causing the pandemonium. अब वो उसके बाद कहती है कि उसकी जो मदर थी वो बिल्कुल बैठी हुई थी आराम से, तो उसको वो एकदम से उसने अपनी ग्लासेस पहनी और वो देखना चाह रही थी कि ये शोर किस चीज़ का, पेंडेमोनियम मीन्स नॉइस. And at that moment, Margot, in a vain attempt to stop the scorpion, advanced, hurried a glass of water at it. The shower of water missed the animal completely, but successfully dressed mother, who, not able to stand cold water, promptly lost her breath and sat gasping at the end of table, unable to protest even. अब जैसे ही मॉर्गो जो था उसने फौरन से स्कॉर्पियन को रोकने के लिए पानी का ग्लास उठाया और जैसे उसके ऊपर फेंका तो वो क्रिएचर जो थी, मतलब जो फीमेल स्कॉर्पियन थी, वो तो पानी से बच गई, बट वो पानी सीधा उसकी मदर के ऊपर गिरा. उसकी मदर थोड़ी एज की थी, तो उनको जैसे वो पानी उनके ऊपर गिरा तो एकदम से उनकी ब्रीथिंग स्टॉप हो गई. एकदम से जैसे हम लोगों के ऊपर कोई चीज़ एकदम से पानी गिरता है, कुछ भी, तो हमारा एकदम से सांस बंद होता है, वैसे सिचुएशन उनकी थी. और वो फिर एक टेबल के साइड पे बैठ गई थी, वो कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं कर पा रही थी. Get a knife, hit them with a book, shout Larry, that boy will kill the lot of us. Bah, look at the table, knee down, in scorpion, kill them. Oh no, don't hurt them, I will catch them, I plead until eventually back of my mother Leslie suggests that the whole lot kill was squashed. अब उसके बाद वो बोल रहे होते हैं कि बुक लेके आओ, नाइफ लेके आओ, इनको हिट करना है, इनको मारना है. और उसके बाद उनको जो रूरल होता है वो समझाता है कि मैं इनको पकड़ लूँगा, मैं इनको वापस ले जाऊँगा, इनको कोई हर्ट ना करे. और उसके बाद उसकी फाइनली वो सारे उसकी बात सुन लेते हैं और एकदम से चुप हो जाते हैं. बाय द टाइम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैड बीन स्टोर्ड, ऑल द बेबी स्कॉर्पियन हैड hidden themselves under the various plates and bit of cutlery. The result of this incident were numerous, with the family still feeling angry and frightened. Moved to the sitting room, I spent half an hour rounding up the baby, picking them up in a teaspoon and returning them to their mother's bag. Then I carried them outside on a saucer and reluctantly released them on the garden wall. उसके बाद वो कहता है कि सारे जब चुप हो गए और मुझे बहुत से ऑर्डर मिले कि उनको उठाओ, उनको बाहर लेके जाओ, तो मैंने क्या किया, सबको, मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा उन स्कॉर्पियन को पकड़ने और उसके किड्स को ढूंढने में, क्योंकि वो सारे जिनको जैसे वो शोर शराबा और मूवमेंट वगैरह होना शुरू हो गई टेबल पे, तो वो सारे एक दूसरे अपने आप को बचाने के लिए हर जगह जगह छुप गए थे. कुछ प्लेट्स के नीचे, कुछ डिफरेंट जो वहाँ पे चीज़ें पड़ी थी उनके नीचे जाके छुपना शुरू हो गए. तो उसको हाफ एन आवर लगा उन सबको इकट्ठा करने में. और वो उन सबको फिर दोबारा से उसने टी स्पून से उठाया और सॉसर में डाला और उसको वापस जाके वॉल में रखाया. रॉजर एंड आई वेंट and spent the afternoon on the hillside, for I felt it would be wise to allow the family to have a break before seeing them again. अब वो कहता है कि इससे पहले कि फैमिली हमें देख के उनको वो सारा इंसिडेंट दोबारा याद आ जाए, इससे बेहतर था कि मैं और रॉजर जो थे वो हिल साइड पे वॉक करने चले गए ताकि हमारी फैमिली को थोड़ा ब्रेक मिल सके. लैरी डेवलप अ फोबिया अबाउट मैक्सबा, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द वर्स्ट repercussion of the whole family was that mother decided to try to stop me from exploring the animal world. अब वो कहता है कि लैरी, उस टाइम के बाद लैरी को मैच बॉक्स से फोबिया हो गया था. वो मैच बॉक्स को दूर से देख कर डरना शुरू हो गया था, मतलब वो इस कदर उस इंसिडेंट से डर गया था. और उसके बाद वो कहता है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू में जो सबसे बुरा डिसीजन था, या सबसे बुरा कंक्लूजन वो ये था कि उसके मदर ने उसको रोक दिया कि वो आज के बाद एनिमल वर्ल्ड को एक्सप्लोर नहीं करेगा. उसके मदर ने कहा, यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन, इट इज़ हाई टाइम you receive a little more education. She said, I am getting you a tutor. उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें एक ट्यूटर ला दूंगी, इससे पहले कि तुम मज़ीद पागल हो, मैं तुम्हें थोड़ी सी एजुकेशन ले लेनी चाहिए. So the student, this was the summary of this chapter. Thank you so much. Stay safe, stay home.